सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आबी प्रोजेक्ट्स का जिम्मा मरकज को सौंप देने के हवाले से मबाहिसे को हैं तैयार। रेवंत हुकूमत ने कर दिया बड़ा ऐलान, बीआरएस के इल्जामात मुस्तरद। जहानुमा और नवाब साहब कुंटा में करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का संग बुनियाद। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस की तरफ से हैदराबाद में तरक्की के अमल को जारी रखने का किया अज़्म। हमदर्दाना तकर्रियों के तहत आरटीसी में कंडक्टर्स को पोस्टिंग के लेटर हवाले। हरमकुंडा से बेंगलुरु चलने वाली एसी बसों को कोंडा सुरेखा ने दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस हुकूमत 100 दिनों के अंदर जमानतों पर अमल दरामद करे, नहीं तो कांग्रेस हुकूमत का खात्मा यकीनी, केटीआर का दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आबी प्रोजेक्ट के इंतजाम व इंसराम के हवाले से वजाहत दी है। इन्होंने बताया कि तकसीम रियासत के कानून के तहत कृष्णा और गोदावरी पर प्रोजेक्ट्स के उमूर का जिम्मा मरकजी हुकूमत के हवाले किया गया और इस जिमन में चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस लीडर्स के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और केसीआर से पूछा कि क्या उनको हकीकत पता नहीं है। रेवंत रेड्डी का यह कहना है कि बीआरएस हुकूमत की गलतियों का ठीकरा कांग्रेस हुकूमत पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। ఈ పునర్విభజన చట్టం మీద ఎప్పుడు చర్చకు వచ్చినా ఆనాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి అక్షరం నన్ను అడిగి నన్ను సంప్రదించి ఈ చట్టాన్ని రూపొందించారు। దీనికోసం ఎన్నో రాత్రులు నేను నిద్రపోకుండా ఈ పునర్విభజన చట్టాన్ని రాపిచ్చినా అని చంద్రశేఖరరావు చెప్పిండు। ఈరోజు మేము చంద్రశేఖరరావు గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం। 2014 రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం మీరు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా లోక్సభలో ఉన్నప్పుడే ఆమోదం పొందింది। ఆనాటి ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని అడిగి మీ సూచనల మేరకు మీ సలహాల మేరకు మీరే ఈ పుస్తకానికి ఈ చట్టానికి రచయిత, మీరే కథా కథనం నిర్వహించి ఈ చట్టాన్ని తెచ్చిండ్రు। ఈరోజు కృష్ణానది మీద ఉండే ప్రాజెక్టులను శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అప్పజెప్పడానికి ఈనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని మా మీద ఏదైతే ఆరోపణ చేస్తుండ్రో, అసలు ఈ ప్రాజెక్టులను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అప్పజెప్పడానికి పునాది రాయబడ్డదే 2014లో మీరు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు మీ అనుమతి మేరకు, మీ సూచన మేరకు ఆనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ చట్టాన్ని రూపొందించింది। ఈ చట్టాన్ని రూపొందించినప్పుడు ఈ చట్టాన్ని లోక్సభలో, రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందినప్పుడు మీ పార్టీ ఎలాంటి అభ్యంతరం పెట్టకపోను ఈ చట్టాన్ని ఆమోదించడానికి మీరు కూడా ఓట్లేసి ఈ చట్టాన్ని రూపొందించారు। అంటే ఈరోజు ప్రాజెక్టుల అప్పగింత వల్ల తెలంగాణకి ఏదైనా నష్టం జరుగుతుందంటే ఈ చట్ట రూపకల్పనలో భాగస్వాములు, బాధ్యులు చంద్రశేఖరరావు, అదేవిధంగా కేశవరావు గారని నేను ఈరోజు ఆరోపణ చేయదలుచుకున్నా। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत असेंबली इजलास में आपाशी प्रोजेक्ट्स पर एक व्हाइट पेपर जारी करेगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत असेंबली में आपाशी प्रोजेक्ट्स पर मबाहिस के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के मुकाबले में बीआरएस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई। इन्होंने महकमे आपाशी को नुकसान पहुंचाने का बीआरएस पर इल्जाम लगाया और केसीआर को चैलेंज किया कि वो हरीश राव के हमरा बहस के लिए आए। అసెంబ్లీ సమావేశాలలో వైట్ పేపర్ ప్రాజెక్టుల మీద రిలీజ్ చేస్తాం, ప్రాజెక్టుల హ్యాండ్ ఓవర్ మీద చర్చ పెడతాం। 48 గంటలు నువ్వు కోరుకుంటే ఇంకెక్కువ కావాలన్నా తలుపులు మూద్దాం, భోజనాలు అక్కడనే పెడతాం, బట్టలు తెచ్చుకో, మేము వస్తాం, మామ అల్లుడు మీరు ఇద్దరు రాండి,
లేకపోతే ఎంబడి కొడుకుని తెచ్చుకొని అవతల మీ బిడ్డ ఉంటే ఆమెను కూడా ఉమ్మడి సమావేశాలు పెడతాం, ఒకవేళ చర్చ చేద్దామంటే శాసన మండలి శాసనసభ ఉమ్మడి సమావేశాలు ప్రత్యేకంగా ప్రాజెక్టుల మీద జలాల మీద చర్చ పెడతాము. మాకెవ్వరు లేరు, నేను మా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇద్దరమే మాట్లాడతాం. సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా వారు మాట్లాడతారు, ముఖ్యమంత్రిగా నేను మాట్లాడతా. చంద్రశేఖరరావు, హరీష్ రావు, తారక రామారావు, కవితారావు నలుగురు మీరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు అలచిపోకుంటే ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడదాం, చర్చ చేద్దాం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों हल्के असम्बली बहादुरपुरा के जहानुमा डिवीजन और नवाब साहब कुंटा में 9 करोड़ 2 लाख रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मिर्जा रहमत बेग कादरी रुकन कौंसिल, एम.ए. मुख्तदिर बाबा कारपोरेटर जहानुमा डिवीजन, इब्तदाई मजालिस के सदूर, मोतमदीन, सरगरम कारकुनान और मुकामी अवाम इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी के हमराह कसीर तादाद में मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने जहां तरक्याती कामों की तफसीलात का जायजा लिया और अक्सर मुकामात पर मुकामी अवाम ने इन कामों की अंजामदही के सिलसिले में सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आने वाले 1 या 2 हफ्ते में बहादुरपुरा और याकुतपुरा में रोड वाइडनिंग के कामों का आगाज़ होगा और ख़ास तौर से बहादुरपुरा असम्बली हलके में फलकनुमा बस डिपो से लेकर वट्टापल्ली तक जो रोड वाइडनिंग की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अनकरीब में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इंजन बौली से लेकर वट्टेपल्ली तक वहाँ पर निशानदेही कर दी गई है कि कितनी रोड वाइडन होगी, तोसी होगी, चौड़ा किया जाएगा। तो उसके लिहाज से गवर्नमेंट वहाँ पर उनको चेक भी देगी और हमारी ज़रूरत है कि जल्द से जल्द रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पर भी हो ताकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो सके लोगों को। मजलिस की कोशिश यही है कि तरक्याती काम अंजाम दिए जाएं। हमने जो आम से वादा किया उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम अवाम से अपील करता हूँ, ख़ास तौर से हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की अवाम से कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखें, अपने इत्तेहाद को और मजबूत करें क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिशें शैतानी ताकतें करेंगे और इनका एक ही मकसद है कि आपके इत्तेहाद को कमज़ोर किया जाए ताकि इनकी इनफरादियत और इनकी अना को तस्कीन मिल सके। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत रखिए और मजलिस आपकी एक सियासी आवाज़ है, आपकी एक सियासी क़ियादत है और पूरे वतन अजीज़ में आप देखते हैं कि केरला, आसाम और सरज़मीन दक्कन पर आपके इत्तेहाद की मिसालें दी जाती हैं। तो अपनी इत्तेहाद को मजबूत रखिए। पार्लियामेंट में आपकी एक आवाज़ है, बेबाक तरीक़े से आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को, आपके दिलों में और आपके जहनों में जो तकलीफ़ है उसको मजलिस पार्लियामेंट में बयान करती है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट बल्कि औरंगाबाद और किशनगंज से भी इंशाअल्लाह ताला इस बार पार्लियामानी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आप अपने वोटों से, दुआओं से अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तोफ़ैल में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेगा। और मलकाजगिरी में बीआरएस की जानिब से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे में तेलंगाना के वजीर केटीआर ने शिरकत की और केटीआर ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और रियासत में कांग्रेस की तरफ से ऐलान करदा 6 जमानतों पर फौरी अमल करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों के जरिए इख्तिदार पर आई है और रियासत में फलाही स्कीम्स पर अमल ना करने का कांग्रेस पर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे ना किए तो बीआरएस अवाम के शाना बशाना खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। इन्होंने कहा कि रियासत में बरक़ी कटौती की जा रही है जबकि बीआरएस के दौरे हुकूमत में बरक़ी कटौती नहीं हुआ करती थी। केटीआर का मजीद यह कहना था कि मलकाजगिरी में बीआरएस कायदीन को धमकियां दी जा रही हैं और इस इजलास में मलकाजगिरी के रुकन असम्बली जनार्दन रेड्डी, पार्टी के कायदीन व कारकुन कसीर तादाद में देखे गए। మల్కాజ్గిరిలో ఆరో బిల్లు ఏమైతే ప్రశ్నించిందా
కంటోన్మెంట్ లో లక్షల భూములు ఇవ్వకపోతే ప్రశ్నించిందా? మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ లో కనీసం వరదలు వస్తే నాగోల్లో ఇంకా ఇక్కడ ఆనందబాగులో కనీసం ఎందుకు ఇయ్యలే రూపాయి మోడీ గారు అని ప్రశ్నించిందా? ఎవరికి ప్రశ్నించిండు? ఎక్కడ ప్రశ్నించిండు? అందుకే నేను అనేది ఎన్నటికైనా కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలకు వాళ్ళ గొంతెల్లది. ఢిల్లీలో మాట్లాడాలంటే దమ్ముండదు. ఎందుకంటే అవతల రాహుల్ గాంధీ అవతల మోడీ ఉంటే వాళ్ళని చూస్తే నోట్లకెళ్ళి మాట రాదు. అందుకే ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ లో మళ్ళీ గర్జించాలంటే ఈ గులాబీ జెండానే గర్జించగలుగుతుంది తప్ప पॉलिटेक्निक में मुस्तकिल होने वाले लेक्चरर्स ने बीआरएस लीडर हरीश राव के एजाज में इजहार तशक्कुर के जलसे का एहतमाम किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि उनकी हुकूमत ने अपने दौर में पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स की फलाह व बहबूद के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। हरीश राव ने बताया कि वो भी पॉलिटेक्निक के तालिब इल्म रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि मनसूबा बंद तरीके से 95% पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स को रेगुलर किया गया। इस मौके पर इन्होंने बीआरएस हुकूमत की हुसूल याबियों को भी गिनवाया। इन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक निज़ाम तालीम को मजबूत बनाने के लिए रियासत में 5 नए कॉलेजेस खोले गए। జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజీలో కొంచెం ఏజ్ అయిపోయేవాళ్ళు కాదు, బట్ లక్కీలీ పాలిటెక్నిక్ దాంట్లో అంతా యంగ్స్టర్సే ఉన్నారు. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్యారియర్. గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని హాస్టల్స్ లేకపోతే పిల్లలు తగ్గుతున్నారంటే ఎస్సీ ఎస్టీ హాస్టల్స్, గర్ల్స్ హాస్టల్స్, బాయ్స్ హాస్టల్స్ కట్టినాం. ఇంకా కొన్ని హాస్టల్స్ కూడా కట్టాలి. ఒక 5 పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు కూడా శాంక్షన్ చేసినాం కొత్తగా. ఇంపార్టెంట్ కాలేజీ కూడా हनमकुंडे से खबर है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब और मुस्ताक अफराद को 6 जमानतें फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। कोंडा सुरेखा यहाँ हनमकुंडा में आरटीसी की एक तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थी। इस मौके पर इन्होंने बेंगलुरु के लिए चलने वाली 4 AC स्लीपर लारी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने कहा कि हमदर्दाना तकर्रियों के तहत मुकर्रर कंडक्टर्स को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और आरटीसी का नाम रोशन करना चाहिए, क्योंकि किए गए वादों के मुताबिक तकर्रियां की गई हैं। वरंगल वेस्ट के MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तश्कील के 2 माह के अंदर फलाही स्कीम्स को मौसर अंदाज में नाफिज किया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हनमकुंडा बस स्टैंड को 20 करोड़ की लागत से मॉडल बस स्टैंड में तब्दील करने का मंसूबा बनाया है। वर्धनापेट के MLA के आर नागराजू ने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम कमजोर तबकात के साथ खड़ी रहेगी। इन्होंने एतराफ़ किया कि हालिया अरसे आरटीसी ने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं। బెంగళూరుకు నడపడానికి ఒక్కొక్క బస్సు 60 లక్షలతోటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన జిల్లాకు 4 బస్సులను కేటాయించడం జరిగింది ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. ఇది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దీనికి తోడు ఇక్కడ మీరు ఏదైతే గత అంటే జాబ్ नलगुंडा में बीजेपी के जिला सदर डॉक्टर नागम वर्षित रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में नलगुंडा पार्लिमानी सीट पर कामयाबी हासिल करेगी और तेलंगाना में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी और तमाम पार्टियों से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत ने खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन दिया और बीजेपी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। डॉक्टर नागम वर्षित रेड्डी के मुताबिक भारत को दुनिया की तीसरी मजबूत इख्तिसादी ताकत बनाने का सेहरा मोदी के सर है। बीआरएस की साबिका करप्ट हुकूमत को सबक सिखाने पर भी इन्होंने जोर दिया है। నల్గొండ జిల్లాలోనే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా 3-4 సీట్ల కంటే ఎక్కువ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తలేదు. మరి నిన్న భారతీయ జనతా పార్టీ చేసుకున్న మనం చూస్తున్న సర్వేలు అన్నీ కూడా మాకు వచ్చిన అందిన సర్వేలు అన్నిట్లలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఖచ్చితంగా 13 నుంచి 14 సీట్లు ఈసారి పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలవబోతున్నది భారతీయ జనతా పార్టీని క్లియర్గా అన్ని సర్వే సంస్థలు చెప్తా ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో నల్గొండ ఉన్నది। मेदक में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जयराज ने रेत और मिट्टी की गैर कानूनी कानखनी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। कहा है कि जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक जिले के 21 मंडलों में कहीं से भी रेत और मिट्टी की निकासी नाजायज रहेगी। इन्होंने बताया कि इस हफ्ते वसी पैमाने पर छापे मारे गए और तकरीबन 2 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया। इन्होंने गुजारिश की है कि रेत या मिट्टी की नकलो हमल करने वाले ये बात यकीनी बना लें कि उनके पास दरकार इजाजतनामा लाजिमन मौजूद होना चाहिए। గారి ఆదేశాల ప్రకారము జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 21 మండలాల్లో మొత్తము అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా
అక్రమంగా ఇసుక మట్టి త్రవ్వకాలు జరిపితే కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ వారం రోజుల నుంచి रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने वरंगल शहर के करीमाबाद में हजरत माशूक रब्बानी के 468वें उर्स की तकरीबात में शिरकत की और दरगाह पर चादर चढ़ाई। इसी दौरान दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत उबैद बाबा नवीद बाबा साहब के इख्तिदा में शागिर्दों ने यहाँ खुसूसी दुआ की। इस आस्थाने पर अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुंचे थे। कोंडा सुरेखा का यह कहना था कि तकरीबन 500 साल कबल इस इलाके में तशरीफ लाने वाले हजरत सैयदना मसूद रब्बानी रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ के लोगों के जहनों में एक रूहानी मुकाम आज भी कायम कर रखा है और इनके जिस्मानी तौर पर दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनके मुकद्दस मकबरों से रौनकें निकलती रहती हैं। इस प्रोग्राम में GWMC कमिश्नर शेख रिजवान बादशाह, एडिशनल कमिश्नर अनीसुर रशीद, DCP अब्दुल बारी और दीगर ने भी शिरकत की। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, फिल्म अदाकार व मेगा स्टार चिरंजीवी के अलावा दीगर 6 पद्म अवार्ड याफ्ता अफराद को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शिल्पा कला वेदिका में तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और तेलंगाना के वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से पद्मश्री अवार्ड याफ्ता अफराद को 25 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा और हर माह 25,000 रुपये पेंशन भी दिया जाएगा। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने हाल ही में साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और मेगा स्टार चिरंजीवी को पद्म विभूषण अवार्ड देने का ऐलान किया। वर्ल्ड कैंसर डे की मुनासिबत से लुलु मैराथन का एहतमाम किया गया है। लुलु मॉल की तरफ से ये दौड़ रखी गई। कंपनी सेहतमंद तर्ज जिंदगी, आदात व अतवार को परवान चढ़ाने में यकीन रखती है और कैंसर की वजह बनने वाले अवामिल के याकुतपुरा गंगानगर में सैयद काजिम हुसैन रिजवी के घर में अचानक आग लगी और तकरीबन 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 2 भांजियों की शादी का सामान भी जलकर खाकिस्तर हुआ, लेकिन उनके घर में कुरान मजीद को एक शोले ने भी नहीं छुआ। ये एक मोजिजा ही कहा जा सकता है। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्लाह खान खालिद ने इस खानदान की मदद करने लोगों से अपील की है। अल्लाह का फजल ये है कि देखिए अब पूरा घर जला, एक अजूबा है अल्लाह की तरफ से। ये कुरान जैसे का वैसा है। देखिए आप पकड़ो एक पर, देखिए आप क्या अल्लाह का, देखिए आप हर चीज जल गई लेकिन कुरान जैसे का वैसा है। देखिए तो ये आपके घर में एक अजूबा हुआ अल्लाह की तरफ से कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अल्लाह के फजल से जो है आप लोग अगर कोई देखना भी चाह रहे हैं तो आके देख सकते हैं ये अल्लाह के अजूबे को। देखिए आप दूसरे किताबें जले, पूरे जले, जहेज पूरा जल गया, लेकिन जो है कुरान जैसे का वैसा है। देखिए आप पूरा घर जल गया। ये देखिए अल्लाह की करामत है। देखिए तो अल्लाह ताला आपके घर में बहुत बड़ा फजल किया है। ये कुरान का नहीं जलना जो है आज दुनिया के लिए अजूबा है, एक मिसाल है आपके घर में। अल्लाह आपके घर में रहमत भेजे इंशाअल्लाह। और जो भी साहिब खैर ये वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन 12-13 लाख का
2 भांजियों की शादी थी, पूरा जहेज जल गया इनका, और आपका पूरा मकान जल गया। जो भी हो सकता हमारे सैयद सज्जाद भाई की मदद करिए। एक बार आराम से बोलिए। 9703051203 मेरा फोन नंबर। सिकंदराबाद के मेटूगुड़ा में एक रेडी मिक्स लारी डिवाइडर से टकराकर उलट गई। लारी नाचारम प्लांट से हाईटेक सिटी में कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जा रही थी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर लारी छोड़कर फरार हो गया। चिलकलगुड़ा ट्रैफिक एसआई श्रीधर शेखर ने कहा कि इतवार को होने की वजह से सरकारी दफातर और स्कूल्स को छुट्टी थी और ट्रैफिक का बहाव भी कम था, इसलिए कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आबी प्रोजेक्ट्स का जिम्मा मरकज को सौंप देने के हवाले से मबाहिस को हैं तैयार। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कर दिया बड़ा ऐलान, बीआरएस के इल्जामात मुस्तरद। जहानुमा और नवाब साहब कुंटा में करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का संग बुनियाद। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस की तरफ से हैदराबाद में तरक्की के अमल को जारी रखने का किया अज़्म। हमदर्दाना तकर्रियों के तहत आरटीसी में कंडक्टर्स को पोस्टिंग के लेटर हवाले। हरमकुंडा से बेंगलुरु चलने वाली एसी बसों को कोंडा सुरेखा ने दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस हुकूमत 100 दिनों के अंदर जमानतों पर अमल दरामद करे, नहीं तो कांग्रेस हुकूमत का खात्मा यकीनी, केटीआर का दावा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।